Hello everyone, welcome back to the CT 360 degrees current affairs session. I welcome you all. I hope you are doing well and I hope that your preparation is going well. All right, so this is a series where we cover all the current affairs relating to the GA and ESI part of your syllabus. So here we are particularly targeting RBI and NABARD, but for all the other exams also this session is important as we cover day-to-day current affairs. So today we are covering it the 17th to 18th of February key dates we are covering today, and we also cover all the important sources like the PIB, the Business Standard, the Hindu, so that you do not have to get into these newspapers. You do not have to get into the important articles and take out the information from there. No, we are doing the hard part for you. All you have to do is watch these videos and please make sure that you keep on revising so that you do not forget on the important information that we provide you. Alright, so before starting, today's quote is believe you can and you are halfway there. So all you have to do is completely believe in yourself, be delusional कि मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, and you are halfway there. Half of the work आपके belief system से ही हो जाता है. So that is why it is said believe you can and you are halfway there. Alright, so let's begin and see what are the important topics that we are covering today. India AI Impact Summit 2026, all over the internet, all over the newspaper, you must have seen. So it comes under these summits and the conferences. We will be doing that. Then it is exercise Milan. It comes under the defense part of your GA. Then the first cow cultural museum, it has been started. We will be covering that and it comes under the first in news. Then it is Bharat Vistar. It is a government initiative for farmers. This comes under government initiatives. We will be covering that as well. And these two, they are part of the ESI syllabus. Okay, so we will be doing that as well. The first is the Global Innovation Index and it's a report. For some reason it is back in the news, so that is why we have to cover it. It comes under reports. And then is Sahi and both. These are the health sector initiatives that were started by the government of India, so we will be covering that as well. Alright, so please brace yourself and let's start. The first is the India AI Impact Summit 2026. Before I get into the topic, questions, statement-based questions, they are asked on conferences and summits. So please make sure that you retain this information. Every information on this slide, it is important for you. So please make sure that you mark it. Alright, so India AI Impact Summit 2026, it has commenced. It has taken place in New Delhi. कौन organize करता है is important for you. It is the Ministry of Electronics and Information Technology. Market, it is the Ministry of Electronics and Information Technology. It's a first major AI summit जो कि global south में हुई है. So earlier they used to happen in the developed countries, the western countries, but it is for the first time that global south में हुई है and it is for the first time that India ने एक narrative shift किया है. क्या narrative shift किया है? Earlier when it used to happen in the developed countries, they used to focus on the AI regulation, AI control, AI risk, AI safety, but now India ने क्या किया है? India has actually मेड अ शिफ्ट एंड इंडिया ने किया है दैट इट वांट्स कि हम कैसे विद एआई डेवलपमेंट और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हाउ एआई कैन एक्चुअली हेल्प इन डे टू डे बेसिस, डे टू डे लाइफ्स को कैसे बेटर कर सकता है. सो एक नरेटिव शिफ्ट इंडिया लेके आया है, एआई सेफ्टी टू एआई फॉर डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट. एंड दिस कम्स अंडर द एआई इंडिया एआई मिशन विच आई एम श्योर दैट आपने पढ़ रखा होगा. व्हाट इज इंडिया एआई मिशन? इट इज बेसिकली इंडिया वांट्स कि हम अपना एक्सपैंड करें, एआई जो इकोसिस्टम है उसको बहुत एक्सपैंड कर ले एंड मोर देन 10,000 करोड़ का इसका बजट है. सो दैट इज द इंडिया एआई मिशन एंड इट अलाइंस विद दिस एंड इंडिया ने एक नरेटिव शिफ्ट किया है फ्रॉम सेफ्टी टू एक्चुअल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट. इट पोजिशंस इंडिया एज अ लीडर सिंस इट्स दिस फर्स्ट टाइम कि हमारे यहाँ पर हुआ है, दैट इज इन ग्लोबल साउथ इन इंक्लूसिव. सो बेसिकली इट वॉन्ट्स दैट एआई इट शुड रीच द मोर the poor communities, the rural communities तक पहुंचना चाहिए, national जो developing nations है वहाँ तक पहुंचना चाहिए. Then is development focus, they want welfare eye, development eye and AI governance. So governance, it must be such that actually encourage innovation, it encourage AI. ठीक है, that is how it positions India as a leader in inclusive, development focused and AI governance. Theme again very important for you, please mark it.
तो क्या थीम था, क्या मोटो था? इट वॉज सर्वजन हित्या सर्वजन सुख्या, विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू वेलफेयर फॉर ऑल, वेलफेयर, happiness for all. So welfare for all, happiness for all. The policies, the technologies, they should be made in such a way that they are inclusive. वो सबको include करते हैं. They reach everyone. They benefit everyone and not just a few people. So I hope you are clear with this. अब हमने ये पढ़ लिया that what is it, कौन ऑर्गेनाइज करता है, क्या थीम था. अब हम पढ़ेंगे कि क्या गोल्स हैं इंडिया के. So these are the three major goals जो कि इंडिया ने रखे हैं. These are called the three sutras of India AI impact. So इंडिया के गोल्स हैं पीपल, थ्री ब्रॉड हेड्स में डिवाइड किया है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस. अगर हम पीपल की बात करें, हम हेल्थ केयर को कैसे एआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मे बी फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस, ठीक है. एआई को एजुकेशन एंड स्किल के साथ, मे बी पर्सनल लर्निंग के लिए एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी. देन फॉर प्लैनेट, हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में एआई के साथ कैसे काम कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं. एंड देन इट्स द प्रोग्रेस, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी, हम इंडस्ट्री एंड इनोवेशन में एआई को कैसे एनहांस करवा सकते हैं, हम स्मार्ट गवर्नेंस कैसे यूज कर सकते हैं, एंड एआई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सो बेसिकली पीपल, अगर पीपल हम इनहांस करेंगे, अगर इम्प्रूव करेंगे हम उनकी लाइफ्स को, प्लैनेट भी इम्प्रूव होगा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, नेशनल डेवलपमेंट होगी. दैट इज द गोल ऑफ द एआई इम्पैक्ट समिट. ऑल राइट, सो वो गोल्स थे एंड दीज आर द प्रिंसिपल्स. ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिकल एरियाज हैं जहाँ पे एआई एक्चुअली काम करेगा. व्हाट आर दीज? दीज आर साइंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल गुड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब्स कैसे कर सकता है एआई, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कैसे कर सकता है, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, की जो एआई रिसोर्सेज हैं दे डू नॉट एक्चुअली मोनोपली ना बन जाए उनकी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज, ठीक है. सो दैट इज वाई दे आर डूइंग दिस ऑल्सो. रिजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन एंड सोशल एम्पावरमेंट, एंड सेफ एंड ट्रस्टेड एआई. सो एआई, it should be actually safe for everyone's use and it should be trustworthy. So these are called the 7 chakras. These are the guiding principles of this summit. I hope you are clear with that as well. So now a related news only. AI and France के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है in this summit only. This is important for you. वो क्या हुई है? First, you know that the president of France. Who can tell me the name of the president of France? It's a very basic question, सबको आता होगा. I will be waiting for your comments. ठीक है, बताना कि what is the name of the president of France. तो he came to India to attend this attend this AI Impact Summit 2026. And क्या major announcements हुई हैं इस partnership में? The first is the Special Global Strategic Partnership. So basically एक bilateral partnership है जिसमें we want that हम strategic partnership करें. हमारी जो partnership है वो सिर्फ defense और trade तक ही ना रह जाए. It does not limit till that, but और आगे बढ़े, AI टेक्नोलॉजी में जाए, मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाए, इनोवेशन तक जाए, ग्रीन इनोवेशन तक जाए. सो ऑल दिस वी वांट एंड दैट इज व्हाई अ पार्टनरशिप इट हैज टेकन प्लेस, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. एंड सेकेंडली, इनॉग्रेशन किया गया इंडिया एंड फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026. कहाँ किया गया? इन मुंबई. सो इट इज कॉल्ड द ईयर ऑफ इनोवेशन 2026, वेयर इससे इंडिया एंड फ्रांस दे वांट कि हम फोकस करें टेक्नोलॉजीज पर, एआई पर, गवर्नेंस पर, हम और एआई को कैसे एनहांस कर सकते हैं, एआई के थ्रू हेल्प हम लेके और हम कंट्रीज को, अपनी कंट्रीज को कैसे डेवलप कर सकते हैं. सो दीज टू थिंग्स, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इंडिया फ्रांस ईयर of innovation 2006, they were the major announcements that were made, and it actually it aligns with the Horizon 2047 roadmap. आपने ये भी पढ़ा होगा. It was launched in July 2023. जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था. ये एक बायलैटरल रोड मैप है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कि हम कैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं. इट ऑल्सो अलाइंस विद इंडियाज विकसित भारत बाय 2047. तो ये भी इससे हम
it is guided by this, that is the Horizon 2047 roadmap. Then it focuses on economic security, global governance reforms, people to people ties, हम education कैसे exchange कर सकते हैं, हम skill कैसे exchange कर सकते हैं, and rules based international order. So international order, it must be respected, international law, it must be respected. So these are the important things that you must know that उन्होंने क्या announce किया है, and I will be waiting for your comment that who is the president of France right now. All right, with that, let's move on. It is Bharat Vistar. So what is it? ये हम पढ़ेंगे. बेसिकली इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर्स के लिए बनाया गया है. सो बेसिकली फार्मर्स दे कैन आस्क दिस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इन द रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल. सो इट एक्ट्स एज अ 24/7 सपोर्ट उसको मिलती है फार्मर्स को, बेसिकली टू मेक फार्मर्स सेल्फ रिलायंट, सो दैट वो डिपेंडेंट ना रहे. एक्सपर्ट ओपिनियन उनको, एक्सपर्ट गाइडेंस, एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन उनको मिले, 24/7 उनके लिए अवेलेबल की गई है अंडर दी भारत विस्तार. सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको लॉन्च किया है एंड फर्स्ट फेज इट हैज बीन लॉन्च ऑफ भारत विस्तार. कहाँ हुआ है? इन जयपुर. एंड इट इज अनाउंस्ड ड्यूरिंग दी AI समिट दिल्ली. ये AI समिट के अंदर ही अनाउंस किया गया है. इट एम्स टू डिजिटली एम्पावर फार्मर्स थ्रू AI ड्रिवन सॉल्यूशंस. तो बेसिकली दे वांट टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर विद AI. It's a multilingual AI based कन्वर्सेशनल एडवाइजरी सिस्टम. ये एक मल्टीलैंग्वेज, मैंने आपको बताया, इट इज़ अवेलेबल इन मेनी रीजनल लैंग्वेजेस. AI बेस्ड कन्वर्सेशनल एडवाइजरी सिस्टम है. तो बेसिकली द फार्मर्स दे विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल एंड इट विल गिव देम एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दैट. ठीक है, वो अपने मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट सॉल्यूशंस इन देयर लोकल लैंग्वेजेस. इट वॉन्ट्स टू मेक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ड्रिवन. ठीक है, फार्मिंग को हम एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू मेक आर फार्मर्स सेल्फ रिलायंट. ठीक है, एंड इट विल एक्ट एज अ पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी. उनको एडवाइजरी मिलेगी सिंस जो फार्मर्स होंगे उनकी आईडीज भी बनेगी यहाँ पे. उससे होगा क्या कि जो उनको डेटा होगा, जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे या जो वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो स्टोर होती जाएगी. तो ये एक पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म बन जाएगा. उसके बेसिस पर ही आगे उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी. ऑलराइट, सो एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया गया है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नंबर फॉर ऑफ कोर्स, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एंड इट इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश राइट नाउ, बट दे आर एक्सपैंडिंग टू 11 लैंग्वेजेस. ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स रियल टाइम मंडी सर्विसेज अक्रॉस इंडिया एज वेल. तो और भी जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं अपार्ट फ्रॉम द एडवाइजरी. जो मंडी के प्राइसेस हैं, जो मार्केट के प्राइसेस हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे. ये सारी जो मैंने नीचे लिखी हैं, एग्री स्टैक, ICAR नॉलेज सिस्टम, IMD वेदर इनपुट्स, ये आपने सब एग्रीकल्चर डिजिटल स्कीम के अंदर पढ़ रखी हैं. आई नो यू नो दिस. तो इन सबको इंटीग्रेट करता है, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आता है, दैट इज द भारत विस्तार. एग्री स्टैक, दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता है, ये एक फार्मर्स का डेटाबेस है. फिर ICAR नॉलेज सिस्टम, ये भी एक एडवाइजर्स ही प्रोवाइड करता है आफ्टर रिसर्च. एंड देन इट इज द वेदर इनपुट्स दैट प्रोवाइड्स फॉर द वेदर फोरकास्ट. फिर मार्केट प्राइजेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब अब एक ही जगह अवेलेबल होंगे ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म कॉल्ड भारत विस्तार. फेस आईडी, फार्मर्स आईडीज मैंने आपको बता दिया. सो दे प्रोवाइड फार्मर आईडी सो दैट जो डेटा उनका है वो एक जगह स्टोर हो जाए एंड बार बार उनको दोबारा ना बताना पड़े उनको. ठीक है, ओके. सर्विसेज कौन सी प्रोवाइडेड हैं, जस्ट एक बार एक लुक, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बस जस्ट एक बार देख लेते हैं क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है. गाइडेंस ऑन सॉइल टेस्टिंग, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, सपोर्ट ऑन लोन्स कैसे है, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी बताएगा. एंड इट विल ऑल्सो एम टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस रिस्क. सो आई होप यू आर क्लियर. कुछ और दो अनाउंसमेंट्स भी की गई. द फर्स्ट इज द फार्मर सेंट्रिक AI हैकाथॉन. सो बेसिकली ये क्या है, ये एक कॉम्पिटिटिव AI इवेंट है जहां पर स्टार्टअप्स को,
टेक कंपनीज को या AI डेवलपर्स को बुलाया जाता है सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन एक्चुअली मेक सम AI टूल्स जो कि हेल्पफुल रहें फार्मर्स को. सो दिस इज द फार्मर सेंट्रिक AI हैथाकॉन. एंड सेकेंड इज द एग्रीकोश AI स्ट्रैटेजी रोड मैप. इट इज अ लॉन्ग टर्म रोड मैप, एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है जिसमें दे वांट टू इंटीग्रेट AI विद फार्मर्स, दे वांट टू इंटीग्रेट AI विद एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम. सो ये दो और अनाउंसमेंट्स की गई, जस्ट आपको नाम याद करने की जरूरत है. फार्मर सेंट्रिक AI हैकाथॉन एंड एग्रीकोश AI स्ट्रैटेजी रोड मैप. That's all. So I hope that Bharat Vistar is also clear to you. If you feel that कुछ नहीं समझ आ रहा है, you have any doubts, please आप comment कर दिया कीजिए. I will be happy to tell you. I will be happy to help you. ठीक है. And just in case आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा है वो भी बता दीजिए because feedback is also welcomed here. ठीक है. All right. Moving on. It is the Exercise Milan 2026. So 13th edition of the Exercise Milan, it has taken place. कहाँ हुआ है? At विशाखापट्टनम. तो basically exercise हुआ है जिन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये, ठीक है. इट टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 2 years एंड दिस ईयर 15th to 25th February को ये किया गया है एंड इट इज़ द 13th edition ऑफ दिस एक्सरसाइज कॉल्ड द मिलन एक्सरसाइज. ठीक है, ये इंडियन नेवी करवाती है. सो इंडियन नेवी एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड मिलन विलेज इन विशाखापट्टनम. इस एक्सरसाइज को करवाने के लिए एक डेडिकेटेड विलेज बनाया गया कॉल्ड द मिलन विलेज और ये कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम फॉर कल्चरल एंड सोशल एक्सचेंजेस अमंग डेलीगेट्स. सो बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ साथ ये और क्या है? ये कल्चरल एंड सोशल एक्सचेंजेस के लिए भी है ताकि हम मैरीटाइम डिप्लोमेसी को कैसे बढ़ा सकें उसके लिए ये है. सो दिस इज द फिफ्थ टाइम. This is the fifth time since it started in 1995. ये fifth time है that विशाखापट्टनम में ये करवाई जा रही है. ठीक है, okay. So 70 countries, more than 70 countries they have participated in and this becomes important for you. ये पूछा जा सकता है, very important. First time in news क्या है? That Germany, Philippines and UAE, they are the first time participants in this. तो इन्होंने पहली बार participate किया है इस exercise में, which is Germany, Philippines and UAE. तो अगर हम थोड़ा सा देखें कि what is this exercise Milan, it is a बायलैनुअल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है. बायएनुअल है ये, आफ्टर एवरी 2 years इसको कंडक्ट किया जाता है. एंड कौन होस्ट करवाता है? इट इज़ द इंडियन नेवी. लॉन्च्ड इन 1995. कब लॉन्च हुआ था? 1995 अंडर द अंडमान एंड निकोबार कमांड. स्टार्टेड विथ 4 नेवीज. सिर्फ 4 नेवीज ने ये स्टार्ट किया था. इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड. बट नाउ एज टाइम्स हैव पास्ड ये एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट मैरीटाइम एंगेजमेंट बन गया है इन द इंडो पैसिफिक. सो ओवर द टाइम्स मेनी कंट्रीज दे हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दिस एंड नाउ इट हैज बिकम द लार्जेस्ट मैरीटाइम एंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस स्लाइड ऑल्सो विच इज द एक्सरसाइज मिलन 2026. ऑलराइट, शैल आई मूव ऑन? ओके. Now, it is the first cow culture museum. The first cow culture museum, it has been established. It is to be established in Mathura. कहाँ establish हो रहा है? It is being established in Mathura. ठीक है, तो ये एक first dedicated museum है जो सिर्फ cow culture पे बनाया जा रहा है. First in news, that is why it becomes important for you. अगर हम देखें ये कहाँ बनाया जा रहा है, it is पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी पर ये बनाया जा रहा है. ये इनिशिएटिव किसके अंदर आता है? इट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज मार्क इट. इट कम्स अंडर द उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद. ठीक है, तो इनके अंडर ये आता है एंड इट इज द फर्स्ट टाइम दैट इट इज बीइंग मेड. कहाँ बनाया जा रहा है? इन मथुरा. सो बेसिकली symbolic and digital, more than 100 cows, more than 100 models of cows they will be displayed here जो कि indigenous भी होंगी, endangered भी होगी. then एक exhibition भी लगेगा of milk and dairy products जिसमें showcase किया जाएगा कि scientific nutrition and Ayurvedic benefits क्या हैं. all this thing will be done and then there will be one place also where you can actually purchase these items. ठीक है, आप जो प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स है वो वहाँ से परचेज कर पाएंगे. तो इट एक्चुअली बूस्ट एक्सपेरिमेंट लर्निंग एज वेल. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दिस काउ कल्चर म्यूजियम कब बना था, कब बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है? ये इन मथुरा. एंड कहाँ बन रहा है? ये इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी. किसके अंदर आता है? उत्तर प्रदेश ब्रज
तीर्थ विकास परिषद. So I hope you are clear with this slide as well. All right, moving on, the Global Innovation Index. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ESI सिलेबस. ये जो रैंकिंग है ये एक्चुअली में आ गई थी इन सितंबर 25. इन सितंबर 2025 ये रैंकिंग आ गई थी, बट फॉर सम रीज़न इसकी एक सब रैंकिंग होती है विच इज़ द R&D रैंकिंग, विच इज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट रैंकिंग. इट इज़ इन न्यूज़ क्योंकि वो जो जियो पॉलिटिकल सिनारियोज बिटवीन द USA एंड चाइना दे आर गोइंग ऑन, दैट इज़ वाई इट इज़ बैक इन न्यूज़. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू कवर इट टुडे. सो पहले हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बेसिकली मेजर करता है हाउ मच कंट्रीज दे आर इनोवेटिव, उनकी इनोवेशन कैसी है, कौन इनको करता है, कौन बनाता है इस रिपोर्ट को, कौन देता है. इट इज़ द विपो, दैट इज़ द WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाता है. सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ दी, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ग्लोबल R&D. ठीक है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ ग्लोबल R&D रैंकिंग. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हु आर द टॉप रैंकर्स. इट इज़ चाइना. सो बेसिकली चाइना ने सरपास किया यूनाइटेड स्टेट्स को. यूनाइटेड स्टेट्स बहुत टाइम से इस रैंकिंग पे नंबर 1 आता था R&D स्पेंडिंग पे, बट नाउ इट इज़ चाइना. सो चाइना ने R&D पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करना शुरू किया है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑन नंबर 1. फॉलोइंग चाइना, इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, देन जापान, जर्मनी, Republic of Korea, United Kingdom, and India. It has, so sorry, and then India actually has 7th position. India की position कौन सी आई है, 7th आई है. So all you have to remember from this slide is first 5 and India's rank. क्योंकि India 7th पे था, that is why we included first 10 for your information as well. But अगर exam point of view से देखें, the first 5 you have to remember: China, United States, Japan, Germany, Republic of Korea. That's all. And then you have to remember India का rank which is 7. All right, तो ये हो गया कि what is the R&D spending. ठीक है, R&D स्पेंडिंग में सबसे ज़्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया है, इट इज़ चाइना. अब हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको. सो बेसिकली R&D spending has reached 2.87 trillion in 2024. तो कितनी स्पेंडिंग हुई थी, इट वॉज $2.87 trillion ऑफ R&D पर खर्चा किया था ग्लोबली, विच इज़ नियरली 3% मोर देन द प्रीवियस ईयर. और जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है कि चाइना ने काम करना शुरू किया है इनोवेशन पर, AI पर, टेक्नोलॉजी पर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कर, एंड वो एक्चुअली सरपास कर पाया यूनाइटेड स्टेट्स को. वरना यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही सालों से, यूनाइटेड स्टेट्स इस जो R&D इंडेक्स है, R&D स्पेंडिंग है, उसका टॉप रैंकर था. ठीक है, ओके. सो हम अगर ग्लोबल ट्रेंड की बात करें, R&D स्पेंडिंग इट हैज़ नियरली ट्रिपल्ड सिंस 2000. तो 2000 से अगर कंपेयर करें 2024 का डेटा ट्रिपल हो गई है. Asia, it accounts for 45% of the global R&D expenditure, which is vast, which is very much, and then a shift from Western dominance to Asia-led innovation growth. तो एक shift देखा गया है from Western dominance to Asia-led innovation growth. All right. तो हमने देख लिया दैट इंडिया का रैंक 7 है एंड फर्स्ट इट्स चाइना. नाउ इंडिया हैज रैंक्ड 7th ग्लोबली इन R&D स्पेंडिंग, एंड इंडिया ने कितना स्पेंड किया, 75.7 बिलियन, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ लेस, मच लेस देन व्हाट चाइना स्पेंड. बट इंडिया इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग इट्स AI इकोसिस्टम. इंडिया भी टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम कर रहा है. दैट इज़ वाई इंडिया का रैंक आया है 7th, which is 3 times more than 2000. अगर 2000 से कंपेयर करें इंडिया का डेटा, इट इज़ 3 times more, and it reflects focus on startups, higher education and strategic technologies. Emerging economies इस इन्होंने एक अलग कैटेगरी रखी थी. सो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज. कौन कौन और है इंडिया के साथ, इट इज़ टर्की, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, दे आर ऑल दी इमर्जिंग इकोनॉमीज. अगर हम जापान की बात करें तो जापान एक्चुअली में बहुत अच्छा कर रहा है, बट प्रीवियस ईयर्स से जापान हैज़ डिक्लाइंड, एंड यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो लाइक जर्मनी, UK, फ्रांस, दे आर दी मेजर इन्वेस्टर्स. बट अगेन अगर प्रीवियस से बात करें, प्रीवियस परफॉर्मेंस की बात करें, तो उससे ये थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. फर्स्ट 5 प्लीज याद रखिएगा, एंड इंडिया का रैंक याद रखिएगा विच इज 7th. आई होप यू आर क्लियर विद दैट एज वेल.
अब क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर R&D स्पेंडिंग्स आई हैं, तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, बट आई एम श्योर कि आपने ये सितंबर में पढ़ रखा होगा बिकॉज दे वर आउट इन सितंबर 2025, ठीक है। बट एक बार जस्ट फॉर इट हम पढ़ लेते हैं। एनुअल रैंकिंग ये कौन देता है? ये देता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देता है ये दो पैरामीटर्स तो 80 हैं, बेसिकली दो पिलर्स पे काम करता है। फर्स्ट इज द इनोवेशन इनपुट एंड सेकंड इज द असेसमेंट आउटपुट। तो ये देखते हैं कि जो कंट्रीज हैं वो कितना इनपुट पे स्पेंड कर रही हैं, R&D पे कितना स्पेंड कर रही हैं, एजुकेशन पे, इंस्टीट्यूशंस पे कैसे वो कितना स्पेंड कर रही हैं, एंड दे असेस द आउटकम्स कि जितना वो स्पेंड कर रही हैं क्या वो उतना प्रोड्यूस भी कर पा रही हैं, कितने पेटेंट्स जो फाइल हो रहे हैं, हाईटेक प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कितने स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर मेजर्ड। दिस इज बेसिकली कि हाउ मच अ कंट्री इज इनोवेटिव, वो कितना इनोवेशन कर पा रही है। दैट इज व्हाट अ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज यूज्ड टू evaluate the national innovation performance and policy effectiveness, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक वॉज 38th एंड कितनी टोटल कंट्रीज होती हैं? 139। सो देयर आर टोटल 139 कंट्रीज आउट ऑफ विच इंडिया का रैंक था 38th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। अगर हम इंडिया इकोनॉमिक इनकम ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट अमंग द लोअर मिडल इनकम कंट्रीज, ठीक है। एंड अगर हम रीजन की बात करें, लीडिंग इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। सो इंडिया इट इज लीडिंग इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया एंड दीज आर द फर्स्ट 3 जिनके रैंक्स आए हैं। द फर्स्ट is the Switzerland, then is the Sweden and then is the United States. तो ये टॉप रैंकर्स हैं ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। लेकिन अगर हम R&D स्पेंडिंग की बात करें तो चाइना इज द टॉप रैंकर, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट रैंकर इज स्विट्जरलैंड, देन इट्स स्वीडन एंड देन इट इज यूनाइटेड स्टेट्स। सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट. All right, last news that is also part of your ESI syllabus, Sahi and both. So basically यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है, ये दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। सही दैट इज द सिक्योर AI फॉर health initiative and both that is the benchmarking open data platform for health AI. ये initiatives क्यों start किए हैं? Basically they are the healthcare को relate करते हैं ये, and since healthcare बहुत sensitive है, since it deals with important information, since it deals with the human lives itself, that is why there was a need कि ये दो initiatives को start किया जाए and इसीलिए ये किया गया है। तो it strengthens India's health AI system. It wants to integrate AI with the health system, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना चाहता है ये। एंड इट फोकस ऑन सेफ। फोकस क्या है कि ये सेफ है, जो हम AI टूल्स हम हेल्थ में डाल रहे हैं क्या ये सेफ है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, अगर ये कोई एरर करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। एविडेंस बेस्ड यूज ऑफ AI इन हेल्थ केयर। हम वेरीफाइड टेस्टिंग के बाद ही इनको एक्चुअली में ह्यूमन डेटा के लिए यूज कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट एविडेंस बेस्ड यूज ऑफ AI एंड इट अलाइंस विद द इंडिया शिफ्ट फ्रॉम AI सेफ्टी टू AI फॉर डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। सो इट ऑल्सो अलाइंस विद दिस। अब हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज। तो बेसिकली जो सही है, सही इट स्टैंड्स फॉर सिक्योर AI फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। ये बेसिकली AI टूल नहीं है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो करनी है फॉर AI इंटीग्रेशन इन हेल्थ। तो ये बताता है कि हाउ कैन वी डिप्लॉय AI इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। इट्स अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर AI इन हेल्थ केयर। पर्पस क्या है? ये एक नेशनल रोड मैप है, जैसे मैंने आपको बताया। इट्स एक्चुअली अ रोड मैप। ये बताता है दैट हाउ यू कैन इनकलकेट, आप कैसे लेके आ सकते हैं AI को इन हेल्थ केयर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन ना हो, स्मूथली हम इसको कैसे ट्रांजिशन को कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट हैज बीन मेड, दैट इज सही। सिग्निफिकेंस पब्लिक ट्रस्ट इन AI ड्रिवन हेल्थ केयर। तो अगर लोगों को ट्रस्ट होगा AI टूल्स पर, उससे क्या होगा? दे वुड want to use it more and effectiveness बढ़ेगी। So these are the features. Accountability mechanism again कि who is going to be responsible अगर कोई error होता है। So it ensures that there are clear processes for responsibility. Patient privacy को बहुत
ध्यान में रखा जाएगा सिंस यू आर यूजिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज. इट प्रोटेक्ट सेंसिटिव पेशेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. सिटीजन सेंट्रिक सेफगार्ड्स, हम सिटीजन्स के लिए इनको बना रहे हैं. दे मस्ट बी सिटीजन सेंट्रिक. फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा यूज करना है सिटीजन्स का, आपको उनका कंसेंट लेना होगा. सो दैट इज व्हाट इट इज. इट प्रमोट्स safeguards that prioritize the needs of citizens. And lastly, it is the ethical AI development. So it must be ethical. Ethical safeguards को, standards को follow करना चाहिए उस AI tool को. Encourages the responsible and ethical use of artificial intelligence. So I hope you are clear with what Sahi is. Now the other initiative was BODH, BODH, which is benchmarking open data platform for health AI. ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है विच विल हेल्प कि हम जो एआई टूल्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इन द हेल्थ केयर सिस्टम, हम उसको पहले वैलिडेट कर लें, हम उसको एक बार चेक कर लें, उसको साइंटिफिकली हम उसको टेस्टिंग कर लें उसकी, तभी इफ वो सारे पैरामीटर्स को मीट करेगा देन ओनली इट विल बी इंक्लूडेड इन द हॉस्पिटल्स और द स्टार्टअप्स और वेयर एवर इट वुड बी. ठीक है, तभी वो उसको हम अंदर लेके जाएंगे, रियल वर्ल्ड में हम उसको तभी डिप्लॉय करेंगे. सो इट्स अ वैलिडेशन एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई टूल्स. पर्पस क्या है? टेस्ट्स एंड बेंचमार्क्स एआई सॉल्यूशंस बिफोर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट. तो रियल वर्ल्ड में जाने से, रियल हॉस्पिटल्स में, रियल हेल्थ प्रोग्राम्स में जाने से पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि क्या ये सही काम कर रहा है, जो ये बोल रहा है वो काम कर रहा है, परफॉर्मेंस इनकी कैसी है, सेफ है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, बिकॉज यू आर डीलिंग हियर विद ह्यूमन लाइव्स ऑल टुगेदर. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस टूल इट विल हेल्प कि हम पहले टेस्टिंग कर ले एंड देन ओनली विल डिप्लॉय देम. तो इट विल इवैल्यूएट परफॉर्मेंस कि जो आपने परफॉर्मेंस बोली थी क्या वो एआई टूल वो प्रोवाइड कर रहा है, इज इट सेफ फॉर ह्यूमन लाइव्स, क्या प्रिडिक्शंस जो ये दे रहा है वो एक्यूरेट है, एंड क्या ये रियल वर्ल्ड के लिए रेडी है. सो वॉट विल हैपन, इससे क्या होगा, इंप्रूव करेगा डायग्नोस्टिक्स, हमें पता लगेगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज हो पाएगा. ठीक है, ड्रग डिस्कवरी, रिसर्च में हेल्प करेगा, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में. सो डॉक्टर्स को एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी, उनको एक डिसीजन मेकिंग जो उनकी है वो स्ट्रेंथन होगी. ठीक है, एंड इट एनहांसेस अफोर्डेबल एंड एक्सेसिव हेल्थ केयर डिलीवरी. सो बेसिकली अगर एक इफेक्टिव एआई टूल होगा वो अफोर्डेबल भी होगा एंड उसकी रीच भी ज्यादा होगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सही एंड बोथ. I hope you are clear with both these initiatives. ठीक है, so now if you think that you have understood today's topics, then please move on with me to the next slide, that is the PYQs, that is the practice questions which I have prepared for you, and please do participate in these ताकि पता लगता रहे कि क्या आपको समझ आ गया है नहीं. ठीक है, so even if you comment down the wrong answer, that is also okay, कोई बात नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने गलत आंसर दिया था, but you will always remember it. ठीक है, so let's start. The core function of both in India's health AI ecosystem is to provide AI based telemedics services directly to the patients, offer financial grants for AI startups, test and benchmark AI tools for performance, safety, accuracy, and real world readiness, replace existing regulatory approval mechanism, या maintain electronic health records. So answer down below. I'll give you 2-3 seconds. Answer कीजिए कि क्या इसका सही आंसर है. Alright, so it is option C. It is actually a test and benchmark AI tool for performance, safety, accuracy and real world readiness. ये एक tool है जिससे कि हम use करके हम scientifically पहले उसको verify कर सकते हैं tool को, and then we can actually inculcate it. ठीक है, alright. Question number 2. According to the Global Innovation Index 2025, which of the following correctly represents the global R&D landscape in 2024? United States remains the largest R&D spending globally. Asia accounts for less than 30% of the global R&D expenditure. China became the largest R&D spender, surpassing the United States. Global R&D spending has doubled in 2010. India ranks among the top 3 global R&D spenders. So I'll give you 2-3 seconds again. Comment down below what do you think is the right answer of this question.
So it is option number C, that China it became the largest R&D spender surpassing United Nations. ठीक है, तो अगर स्पेंडिंग की बात की जाए चाइना की ज्यादा है अब as compared to US. All right, question number 3. The proposed cow culture museum in Mathura is primarily an initiative of which body? So it comes under which of these bodies? Please read this and tell me which is the correct answer. So it is option C, that is Uttar Pradesh Braj Tirth Vikas Parishad. ठीक है. All right, moving on. Question number 4. With reference to the exercise Milan, consider the following. It began in 1995 under the Andaman Nicobar Command. The 13th edition establishes a dedicated Milan village in Vishakhapatnam, and it is conducted annually by the Indian Navy. The word used is annually. Comment down below what do you think is the right answer. Right, so it is first and second, they are correct, but the third is not correct because biannually, मैंने ये करवाया था, biannually conduct किया जाता है after every 2 years. Biannual multilateral naval exercise that is hosted by our Indian Navy. All right, last question of the day. Which of the following best captures the distinctive global positioning of the India AI Impact Summit 2026? Read this. It focused exclusively on AI safety regulations for advanced economies. It marked a transition from AI governance to AI commercialization. It shifted the global discourse from AI safety to AI for development and impact under the India AI mission. It was organized jointly by Niti Aayog and the Ministry of External Affairs. It limited participation to G20 member countries. So which of these is right? Right, this is option C, that is shift has been made from AI safety to AI for development and impact under the India AI mission. ठीक है, यहाँ हमने ये किया था. It marks a global narrative shift from AI safety to AI for development and impact. So this is a homework question for you. I will read it for you. India's ranking of the 38th in the Global Innovation Index 2025 primarily reflects performance assessed across which of the two broad dimensions: fiscal deficit and export competitiveness, innovation inputs like R&D, institution education, and innovation outputs like patents, high-tech production, human development index and ease of doing business, startup funding and venture capital inflows, digital public infrastructure and final inclusion. बहुत ही इजी, आपको बहुत ही इजीली ये आंसर आ जाना चाहिए. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. प्लीज मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इजी. आपको पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द राइट आंसर. ऑल राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई विल बी बैक विद अनदर सेट ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यू, एंड इफ यू वांट टू read the PDF, if you want to access the PDF of this session, so please join our Telegram channel. उसका लिंक हमारे description box में दिया होगा. All the important information we share there and all the PDFs also of these sessions, they are shared there. But the PDF, it will be available after 24 hours of this session. All right. With that, I will see you next time. Till then, please like and share this video. Thank you.